Mohandas Karamchand Gandhi, lovably called as Bapu, was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father was a higher official of Porbandar and his mother, Putlibai, was a religious woman. Gandhi was an average student, but he derived the modesty from his father and morale through his mother. Stories such as Satya Harishchandra highly influenced Gandhi to lead a principled life. At the age of 19, Gandhi went to England to become a lawyer. After returning to India, he began to practice law in Bombay with little success. So when he received an offer to work for a firm in South Africa, he was ready to oblige it. He was 24 years by the time and had a wife named Kasturibai. While being in South Africa, which was dominated by the Europeans, Gandhi often felt the discrimination against the Indians. On one such occasion, he was forced to give up his seat in the first-class compartment to a European. When he refused to do so, he was beaten up by the coach driver and was thrown out of the train. This proved to be the wake-up call for Gandhi to fight against the suppression. He soon found out a way to revolt, and that's called Satyagraha, the force of truth. With the newly found Satyagraha, Gandhi was able to combat the discrimination against the Indians. He even gained them the right to vote, for which he became a national hero. In 1914, while Gandhi came back to India, the country was under the rule of the British. Gandhi immediately joined the freedom movement and called for Swaraj, the rule by our own countrymen. With the introduction of Gandhian style of non-violence and non-cooperation, the Indian freedom struggle got much powerful. In 1921, he was made the leader of the Indian National Congress, the party that was fighting for the independence. In 1930, as the British government imposed tax on the salt, Gandhi took a 400 kilometers march to seashore called Dandi. There, he made salt with his own hands to show his protest against the evil tax. He even encouraged the use of homemade curry through an instrument named charka. Curry was not only aimed to provide self-dependence, it was indeed an act of rebellion against the foreign-made clothes. Gandhi not just influenced the people to be powerful and independent, he showed them the way a leader should be: calm, simple and humble. Though a religious person, always changing the names of God and reciting Bhagavad Gita, Gandhi was always against the social evils such as untouchability. With such qualities, he was rightly called as Mahatma, the great soul. Whenever his ways of non-violence has not yielded the expected results, Gandhiji resorted to the hunger strike, placing his own life in danger for the cause. As the Second World War broke out in 1939, Gandhi thought it to be the right time to force the Britishers to quit. He invoked a movement in 1942 called the Quit India Movement. By the year 1947, the British government has enough troubles to seek in India and England. So it did leave India, but only after dividing it into two countries, India and Pakistan. Though Gandhi was happy for the independence, he was shattered by the partition. The partition of India was not a peaceful process. It led to violent clashes between the Hindus and the Muslims. Gandhi repeatedly went to the hunger strikes to restore peace among the country. On one such occasion, in 1948, as Gandhi completed a 2-day hunger strike in New Delhi, he was shot dead by a Hindu nationalist called Nathuram Godse. Though Gandhi was no more to lead the nation, his principles and character has always shown the best way for the leaders to follow. प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें अपनी ईमानदारी, काबिलियत और देश प्रेम के कारण आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, मगर जब वो सिर्फ 2 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें उनके नाना के यहाँ लेती गई। मिर्जापुर से शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए। वो जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी जाति अपने नाम में नहीं लिखी। बनारस के काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद
उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। उन्होंने 1928 में ललिता देवी जी से शादी की और दहेज लेने से भी साफ मना कर दिया, क्योंकि वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे। शास्त्री जी के परिवार का आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, मगर उनके एक टीचर थे निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो बड़े देशभक्त थे। उन्होंने आर्थिक रूप से शास्त्री जी की बहुत मदद भी की थी। शास्त्री जी उनकी देशभक्ति की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और फिर 1915 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। 1921 में अपने हाई स्कूल एग्जाम के कुछ महीने पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने भी हजारों बच्चों की तरह अपना स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर नाबालिग होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। 1930 में शास्त्री जी कांग्रेस की एक इकाई के सेक्रेटरी बनाए गए और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी अहम भूमिका निभाई। वो घर घर जाते थे और उनसे लगान और टैक्स ना देने के लिए कहते थे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान वो कई समाज सुधारक और पश्चिमी फिलोसफर्स के बारे में भी पढ़े। आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्रालय सौंपा गया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने उन्हें भारत सरकार का रेल मंत्री बना दिया। मगर 1956 में तमिलनाडु में एक रेल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए। इस हादसे का उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्हें लगा कि ये उन्हीं की गलती है और वो इस पद को संभालने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1957 में वो वापस से यातायात और संचार मंत्री बनाए गए और फिर उन्हें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी व्यापार और उद्योग मंत्री बना दिया गया। 1961 में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी को नया प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि उस समय और भी कई बड़े कांग्रेसी नेता थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो बहुत साधारण स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं किया। अपने परिवार के बहुत दबाव देने पर उन्होंने एक कार खरीदी थी। 12,000 रुपए की कार के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने 7,000 रुपए जमा किए और बाकी पैसों के लिए बैंक से लोन लिया। शास्त्री जी ने खाने की कमी, बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। भारत में भोजन की कमी दूर करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति और दूध से बनने वाले सामान की कमी पूरी करने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति शास्त्री जी के समय में ही आई थी। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ दिया, तब उन्होंने सेना को जवाब देने के लिए आजाद कर दिया था और ये साफ साफ कह दिया था कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा। इसी समय उन्होंने देश के किसानों और सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। युद्ध के समय की ही बात है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत युद्ध बंद कर दे, वरना PL 480 समझौते के तहत भारत को मिलने वाला गेहूं अमेरिका देना बंद कर देगा। उसी समय शास्त्री जी ने अपने घर में शाम का खाना बनाने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा परिवार एक वक्त भोजन किए बिना रह सकता है या नहीं। अगर रह सकता है तो मैं कल ही देशवासियों से एक वक्त का खाना छोड़ने का आग्रह करूंगा। हम भूखे रह लेंगे, मगर अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। शास्त्री जी को दिल की बीमारी थी और उन्हें पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। तीसरी बार में कार्डियक अरेस्ट के कारण 1 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु पर आज भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद उनकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश से हुई थी, मगर अभी तक इसका कोई भी सबूत खुले रूप से हमारे सामने नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शास्त्री जी पहले भारतीय हैं। ये शास्त्री जी जैसे महान देशभक्तों, काबिल और ईमानदार नेताओं की ही देन है कि न सिर्फ हमें आज़ादी मिली, बल्कि आज़ादी के कुछ दशक के बाद ही हमारा देश आज दुनिया के सामने एक पहचान बना रहा है। मगर गुजरते समय के साथ ऐसे महान लोगों की यादों पर एक धूल सी पड़ती जा रही है। हमें चाहिए कि हम हमेशा इनका सम्मान करें और इनके सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें।